Good morning, students. Welcome back to today's class. Today we are going to discuss about the another identity, identity number 8 from the chapter polynomials. Before going to concentrate on that identity, let us revise once again the topics that we learned in the previous class. We learned about identity 7, that was x plus identity 6 and 7, x plus y whole cube and x minus y whole cube. Based on those two identities, I have taken two examples here. इसमें ये माइनस वाला है और ये प्लस वाला आइडेंटिटी. सो मैं माइनस वाला समझा दूंगा, प्लस वाला तो ईजी है बिकॉज बोथ द आइडेंटिटीज हैव द सेम एक्सपेंशन विथ माइनस प्लस चेंज्ड. फर्स्ट वन, दिस वन, 999 can be written as, it can be written as 1000, nearest value is 1000 only, minus 1, we can write it as 1000 minus 1. So 1000 minus 1, now it looks like x minus y identity, x minus y whole cube identity. So first you write x minus y whole cube is equal to, जैसे इसको 1000 minus 1 लिखा है, इसको कैसे लिख सकते हैं? 100 plus 4 लिख सकते हैं. दिस कैन बी रिटन एज 100 plus 4. सो इसके लिए x plus y whole cube आइडेंटिटी लगेगा. x minus y whole cube identity is x cube minus y cube minus 3xy into x minus y. This is the identity expansion for x minus y whole cube. x plus y whole cube के लिए x cube plus y cube plus 3xy into x plus y, all plus, and here except x all are negative. Now x minus y की जगह पे आएगा 1000 minus 1 whole cube is equal to, x plus में क्या लिखा है 1000 and its cube minus y cube is 1 cube minus 3 into x is 1000 into y is 1 minus x is 1000 minus y is 1. Now 1000 cube means 1000 into 1000 into 1000. How many zeros will come? 1000 to be multiplied how many times? 3 times. 1000 into 1000, or you let it be 1000 into 1000 square, I'll write, because 1000 is common here also. 1000 square minus 1 minus 3 into 1000 into 1000, I'm just multiplying it, 3 into 1000 into 1000 minus 3 into 1000 into 1, 3 into 1000 into 1. I just used the distributive property. Now this is, यहाँ पे 1000 कॉमन है, इधर भी 1000 कॉमन है, इधर भी 1000 कॉमन है. आई एम टेकिंग 1000 कॉमन, 1000 कॉमन. सो यहाँ पे बच गया 1000 स्क्वायर माइनस ये 1 में, ये 1 अकेला चला जाएगा, सेपरेट रहेगा. 3 इंटू 1000 इज टेकन कॉमन, सो 3 इंटू 1000 इज लेफ्ट, 3 इंटू 1000, देन माइनस 1000 इज टेकन कॉमन, 3 इंटू 1 लेफ्ट. ये 3 टर्म्स में से जिसमें भी जहाँ भी 1000 कॉमन था उन तीनों टर्म्स में से 1000 कॉमन निकाल. अब 1 अकेला रह गया तो 1 को सेपरेट रहेंगे, इज इक्वल टू, देन 1000 इंटू 1000 स्क्वायर इज, तो 3 zeros 6 zeros हो जाएंगे, माइनस 3 इंटू 1000 3000 माइनस 3. अब इसमें से इसको माइनस करना है और फिर वापस इससे मल्टीप्लाई करना. 1000 इंटू 3000 minus 3, 3000 and 3, this is 3003. So this 100, 10, 1000, 10,000, lakh, 10 lakhs. This is 10 lakhs minus 3003 minus 1. So it is 1000 into 3 lakhs में से 10 lakhs में से 3000 माइनस किया. So 3000 और 3, only 3000 माइनस करते हैं तो it will be 9 lakhs 97,000 हो जाएगा. If only 3000 is subtracted, it will be 10 lakhs means 9 lakhs plus 1 lakh. 9 lakhs as it is रहेगा. 1 lakh में से 3000 गया तो 97,000. 97,000 में भी 3 minus, or simply can subtract here. 10,000, sorry, 10 lakhs minus 3003. 1 taken, it is 10, 10 minus 3 7, 9, so it is 9, this is also 9, this is 9 minus 3 6, this is 9 and this is 9 and this is, that's it.
तो यहाँ आ गया है 9 इंटू 996997 माइनस 1। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर उसमें से 1 माइनस करोगे, दैट विल बी द आंसर. सो आई एम लिविंग इट फॉर यू. You solve it and find out the answer and then check, verify your answer. So this is how we use the identity x plus. यहाँ पर 3 डिजिट्स दिया हुआ है इसलिए ये थोड़ा लंबा आंसर है. स्मॉल डिजिट्स के लिए इतना लंबा आंसर नहीं आता है. So this was about the previous class using x minus y identity. Same expansion for x plus y identity, only plus. यदि ये प्लस वैल्यू से तो आपको कहीं भी सब्ट्रैक्ट करना नहीं है, तो सबको ऐड करते ही जाना. इट बिकम्स वेरी इजी. सो दैट्स द रीज़न जो थोड़ा जिसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे उसी को मैंने एक्सप्लेन किया है. सो आई एम स्किपिंग इट एंड आई एम लीविंग इट फॉर यू. यू सॉल्व इट एंड वेरीफाई द आंसर. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट identity, that is identity number 8. This is actually today's topic. So what is the identity? Focus on this identity. X cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is equal to what? This is LHS. ये किससे इक्वल है? x plus y plus z into x square y square z square minus xy minus yz minus zx. तो ये पूरा आइडेंटिटी है, ये पूरा एक ही आइडेंटिटी है. Understand? x plus y plus z, x cube y cube z cube minus 3xyz is equal to x plus y plus z into x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx. आप चाहे तो राइट साइड को लेके मल्टीप्लाई करोगे, x प्लस इस RHS को लेके इन तीनों को इन सभी टर्म्स से मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करोगे तो आपको LHS आ जाएगा. LHS को लेकर करने में आपको दिक्कत हो जाएगी. सो बेटर यू टेक RHS, multiply all these terms, simplify, you will get this one. Now based on this identity, how to solve the questions? Factorize. यहाँ पे जो example दिया हुआ है, this is example number 25. I'll explain this one first and then I'll explain some more questions. 8x cube plus y cube plus 27z cube minus 18xyz. देखिए 3 वेरिएबल्स हैं इसमें. प्रीवियस जितने भी हमने आइडेंटिटीज लर्न किया, 7 आइडेंटिटीज, उनमें से कोई से किसी भी आइडेंटिटी में ऐसा वाला टर्म नहीं है प्रोडक्ट ऑफ 3 वेरिएबल्स. देयर वाज नो सच एक्सप्रेशन आइडेंटिटी विच हैड प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स. सो दिस मस्ट बी द आइडेंटिटी 8. सो अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी 8, फर्स्ट ऑफ ऑल यू सिंप्लीफाइड एज आई टोल्ड इन द प्रीवियस क्लास. सबसे पहले आपको आइडेंटिटी कौन सा है, ये किस आइडेंटिटी के हिसाब से है, ये आपको मैच करना रहेगा. सो पहले से हमने मैच कर दिया कि दिस इज मैचिंग विद द आइडेंटिटी नंबर 8. सो आइडेंटिटी नंबर 8 में हमें क्या कैसे दिखाई देता है? 3 टर्म्स का क्यूब. तो यहाँ पर क्यूब्स तो दिखाई दे रहे हैं, और लेकिन 8 को भी हम इसे और हमें थोड़ा सिंप्लीफाई करना है. 8 कैन बी रिटन एज 2 क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 27 कैन बी रिटन एज 3 क्यूब जेड क्यूब माइनस 18xyz. Now after this 2 into x, so it can be written as 2x whole cube. पेन भी खत्म हो गया. प्लस y को 1y लिख सकते हैं और y सिंपल y भी लिख सकते हैं बिकॉज हेयर कोएफिशिएंट इज 1. 3z होल क्यूब माइनस एक्चुअल आइडेंटिटी में हमें माइनस 3xyz होता है तो माइनस 3 लिखेंगे. उसके बाद x प्लेस में यहाँ पे क्या आया? 2x आया. सो विल राइट 2x. xyz तो एज इट इज रहेगी, सिर्फ इस 18 को हम प्रोडक्ट फॉर्म में सेपरेट कर देना. इंटू y को हम y प्लेस में 1y ही रहेगा. इंटू z प्लेस में यहाँ पे 3z आया है. इसको हमने कुछ नहीं किया, xyz एज इट इज है xyz. इस 18 को 3 इंटू 2 इंटू 3 कर दिया. क्यों? 3 2 जार 6, 6 3 जार 8. वापस ये टर्म एज इट इज यहाँ पर लिखा हुआ है डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन में. इसको क्यों लिखा है? टू मैच विद द आइडेंटिटी. मैच आइडेंटिटी में माइनस 3xyz, यहाँ जो x है और यहाँ x जो है, इन दोनों का वैल्यू सेम ही रहेगा. सो यहाँ पे x प्लेस में 2x आया है तो यहाँ पर भी x प्लेस में 2x ही होना चाहिए. दैट्स द रीजन वी हैव रिप्रेजेंटेड इट लाइक दिस. फाइन. सो x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3 इंटू x इंटू y इंटू z. So this is according to
the identity, new identity, x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz. So whichever looks like this identity, उसका expansion हम इस तरह लिख सकते हैं. So now this expansion can be written as x plus y plus z into x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx इज इक्वल टू. अब ये तो आइडेंटिटी एक्सपेंशन है, उसके हिसाब से हमें लिखना रहेगा x प्लस में 2x प्लस y प्लस में y प्लस z प्लस में 3z इंटू एक्स स्क्वायर इज 2x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज y ओनली, z स्क्वायर z प्लस में 3z आया, सो 3z होल स्क्वायर माइनस x इंटू y, x इज 2x इंटू y इज y ओनली माइनस yz, y इज y and z is 3z minus z is 3z into x is 2x. एक और स्टेप में 2x प्लस y प्लस 3z into 2x square means 4x square plus y square plus 3z whole square means 3 square z square 9 z square minus 2xy minus 3 yz minus 3 2s are 6 xz. So this is the answer for this given question. Factorize, इसको हमने factorize किया तो this is one factor, this is another factor. We have got answer as product of two factors. So this is how this question is to be solved. Factorize करना cubic identity according to the identity number 8. So soon after you see a term which is product of three variables x, y, z or a, b, c or any other three variables, so that is definitely of identity number 8. So according to identity number 8, you have to first frame it as x cube plus y cube plus z cube. x plus में कुछ भी हो सकता है, it can be product of variable and constant also, there can be number also. So this is how the question is to be solved. उस आइडेंटिटी फॉर्म में लाने के बाद एक्स वाई जेड वैल्यूज़ को रिप्लेस करते हैं और सिंप्लीफाई कर देते हैं. नाउ लेट अस फोकस ऑन द अनदर एग्जांपल. दिस इज नॉट एग्जांपल, एक्सरसाइज क्वेश्चन, दैट इज 2.5, क्वेश्चन नंबर 13. इफ एग्जांपल 13 सॉरी एक्सरसाइज 2.5 में से क्वेश्चन नंबर 13 है, वहाँ पे दिया है इफ x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 0 देन शो दैट x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस z क्यूब इज इक्वल टू 3xyz. ये हमें शो करना है. ओके, सो ध्यान से यदि आप देखें, it is just identity 8 only. Identity, what is identity 8? x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is equal to x plus y plus z into x square plus y square plus z square minus 2xy minus xy minus yz minus zx. This is the identity. अब इस आइडेंटिटी में से यदि x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे क्वेश्चन वही है 13 क्वेश्चन नंबर, इज दैट ओनली x प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि इन तीनों वेरिएबल्स का वैल्यू समेशन 0 हो जाता है, तो क्या होगा बताओ? व्हाट हैपेंस इफ सम ऑफ द थ्री वेरिएबल्स इज 0. अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy z इज इक्वल टू, इन तो क्वेश्चन के अनुसार इन तीनों का समेशन x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 दिया, तो 0 इंटू, नाउ व्हाट अबाउट दिस विल बी एज इट इज x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx. ओके, अब 0 इंटू एनीथिंग इज 0, ये पूरा 0 हो गया, ऑल 6 टर्म्स गॉट बिकम 0. नाउ x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0 हो गया. नेक्स्ट स्टेप में ये तीनों क्यूब टर्म्स उनको यही रहने दो, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू, इस माइनस टर्म को मैं राइट साइड भेज दे रहा हूँ, सो इट बिकम्स प्लस हियर 3xyz. नाउ चेक दिस,
यही तो हमें प्रूफ करना था। इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, इस आइडेंटिटी के अंदर x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो जाता है, देन शो दैट एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इज इक्वल टू 3xyz। तो हमने दिखा दिया, राइट। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 13, आपको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। नाउ बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन नंबर 13 देयर इज क्वेश्चन नंबर 14 गिवन, उसमें 2-3 क्वेश्चंस दिए हैं। अगेन क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ -12 क्यूब, फाइंड -12 होल क्यूब प्लस 5 क्यूब 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब। दिस इज क्वेश्चन नंबर 14 का पहला वाला, एक मैंने लिया 14 क्वेश्चन में से, ये हमें फाइंड करना है। जनरली ये पूरा आइडेंटिटी हमें मालूम नहीं होता, हम क्या करते हैं, 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, फिर इसको माइनस के साथ 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके फिर ये सब करना है। आप लोग मैक्सिमम स्टूडेंट्स वही करते हैं और आंसर लिख के बड़े खुशी से आ जाते हैं, बट वो गलत है। हमें क्या करना है, इट इज़ लाइक एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। सो ये फाइंड करने के लिए हमें पहले इन तीनों का समेशन फाइंड करना है। हियर एक्स इज इक्वल टू व्हाट, -12, वाई इज इक्वल टू 7, जेड इज इक्वल टू 5। इन तीनों का समेशन फाइंड करो। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स कितना, -12 प्लस वाई 7 प्लस जेड 5, कितना रहे इन तीनों का समेशन, दिस इज -12 प्लस 7 प्लस 5 इज अगेन 12। सो दोनों का समेशन हो गया 0। यहाँ पे एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का आंसर कितना आया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 आया है। सो 13 एग्जाम्पल में हमने जो लर्न किया था क्वेश्चन नंबर 13 में, इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल 0, यानी कि दिए हुए क्वेश्चन में तीनों नंबर्स का समेशन यदि 0 हो जाता है तो उनके क्यूब्स का वैल्यू कैसे होगा, क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 0 इफ z, then if x plus y plus z is equal to 0, then इन तीनों के क्यूब्स का समेशन सिंपली 3xyz। सो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन तीनों का समेशन 0 हो गया, ये 0 आ गया। तो जब 0 आता है हमें ये पूरा प्रोसीजर फॉलो करके, यानी कि इन तीनों को अलग अलग से मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करने का ज़रूरत नहीं, सिंपली उसको अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस क्वेश्चन 3 से हमें मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू एक्स -12 into y 7 into 5. So 3 into -12 is -36 into 7 into 5. It is 7 6 are 42, 7 3 are 21, 21 plus 4 25 into 5. This is -5. 5 2s are 10, 5 5s are 25 plus 1 26, 5 2s are 10 plus 2 12, -12 60. So this is -12 cube plus 7 cube plus 5 cube. यदि हमें आइडेंटिटी पता नहीं होता हम इन तीनों के क्यूब्स फाइंड आउट करके सॉल्व करते हैं, लेकिन आइडेंटिटी पता होने के कारण हम क्या किया, सिंपली इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दिया। इजंट इट इजी? तीनों का समेशन 0 होने पर सिर्फ उन्हीं तीनों वैल्यूज को 3 के साथ मल्टीप्लाई करने पर आंसर आ रहे हैं, यह ईजी है ना। So what we have done, according to the question number 13, we have solved question number 14. So this is what is expected. I don't know whether you have seen this or not. I didn't concentrate whether it was visible or not. But again, I will explain once again. If 3 values are given, we'll just have to multiply 3 values. तीनों values का summation 0 है. So उन तीनों values को multiply करके answer निकालना. This is question number 14. So that's it for today, children. Hope you understood. You do one thing while watching. Do not watch the video till end at a time. Watch it section wise. फर्स्ट सेक्शन में मैंने जो एक क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था, पहले इस मॉडल को कंप्लीट करो, देन इस आइडेंटिटी को सॉल्व करो, देन राइट इट एंड देन गो थ्रू द एग्जांपल्स। उसके बाद एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। एंड इफ यू गेट एनी डाउट्स यू कैन राइट बैक टू मी, आई विल रिप्लाई यू इन द विद इन few minutes. So that's it for today, children, and hope with this chapter is over. You have to complete the exercise, and from tomorrow onwards, hopefully I will be taking a test, so prepare for the test from this chapter, and later we will start the new chapter. So that's it for today. Goodbye.